नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, पहले इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। ऑल इन डिवाइन ऑर्डर, थर्ड चैप्टर, exception from soul essence and soul purpose, channel material. Step back from life occasionally and take in the grander view. Remember that you are spirit, and no matter how much you suffer in your human form, you are an empowered creator who does not and cannot die. The body comes and goes, and the emotions rise and fall. The mind struggles to keep control, but all of these activities are part of your temporary physical existence. The more you identify with your limited ego, the more difficult it is to accept divine order. Only when you recall that you are an immortal spiritual being living in an impermanent body and that you are here on the planet to experiment and create responsibly, does anything make sense. When you accept that you are chart your course of experiences in order to further your soul's growth, life no longer seems so daunting, random, and scary. Instead, it transforms into intricate possibility. You begin to understand that Earth is a huge laboratory and that you are dabbling in your creation. Some are glorious and some are hideous. The marvelous experiments result in your victories, and the awful ones leads to your tragedies. Every development teaches something and provides an opportunity to learn more. Look past the physical linear phenomena and the world of appearances in order to find the lessons of your life. Using your imagination, trying to see from the perspective of a timeless soul that travels from one incarnation to next, rather than from the view of your ego, which is trapped in fear. Once you accept divine order, your greater consciousness begins to directly reveal to your soul's plans and intentions. Even if you do not intellectually or emotionally understand it as it unfolds, life will begin to make more sense. There is no way for you understand your soul's plan on a mental level because the intellect is the part of the ego, your temporary self. However, you will intuitively sense your spirit's direction when you are trust your greater wisdom. आइए दोस्तों, इसको हम ध्यान ध्यान से सुनते हैं. All is in divine order. Third, except from soul lesson and soul purpose, channel material. Step back from life occasionally and take in grander view. Remember that you are spirit and that no matter how much you suffer in your human form, you are an empowered creator who does not and cannot die. The body comes and goes, and the emotions rise and fall. The mind struggles to keep control, but all of these activities are part of your temporary physical existence. The more you identify with your limited ego, the more difficult it is to accept divine order. Only when you recall that you are immortal, spiritual being living in an impermanent body and that you are here on the planet to experiment and create responsibly, does anything make sense. When you accept that you chart your course of experiences in order to further your soul's growth, life no longer seems so daunting, random, and scary. Instead, it transforms into integrate possibility. You begin to understand that Earth is a huge laboratory that you are dabbling in your creations. Some are glorious and some are hideous. The marvelous experiments result in your victories, and the oval phone once leads to your tragedies. Every development teaches something and provides an opportunity to learn more. Look past the physical linear phenomena and the world of appearances in order to find the lessons of your life. Using your imagination, trying to see from the perspective your timeless soul that travels from one incarnation to next rather than from the view of your ego which is trapped in fear. Once you accept divine order, your greater consciousness begins to directly reveal to your soul's plans and intentions. Even if you do not intellectually or emotionally understand it as it unfolds, life will begin to make your sense. There is no way for you to understand your soul's plan
on a mental level because the intellect is a part of the ego, your temporary self. However, you will intuitively sense your spirit's direction when you trust your great wisdom. आइए दोस्तों इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। सब कुछ ईश्वरीय क्रम में है। तृतीय अध्याय आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश लिए गए हैं। चैनल सामग्री। कभी कभार जीवन से पीछे हटें, भव्य दृष्टिकोण अपनाएं। याद रखें कि आप आत्मा हैं और चाहे आप अपने मानव रूप में कितना भी कष्ट सहें, आप एक सशक्त रचनाकार हैं और ना तो मरता है और ना ही मर सकता है। शरीर आता है और चला जाता है और भावनाएं उठती और गिरती हैं। मन नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन ये सभी गतिविधियां आपके अस्थायी भौतिक अस्तित्व का हिस्सा है। जितना अधिक आप अपने सीमित अहंकार के साथ पहचान करेंगे, ईश्वरीय आदेश को स्वीकार करना उतना ही कठिन है। केवल जब आप याद करते हैं कि आप एक नित्य शरीर में रहने वाले एक अमर आध्यात्मिक प्राणी है, तो आप यहाँ इस ग्रह पर जिम्मेदारी से प्रयोग करने और निर्माण करने के लिए हैं, तो कुछ भी समझ में आता है। जब आप स्वीकार करते हैं कि आप अपनी आत्मा के विकास के आगे बढ़ने के लिए अपने अनुभवों के पाठ्यक्रम को रेखाचित्र करते हैं, तो जीवन इतना कठिन और व्यवस्थित और डरावना नहीं लगता है। इसके बजाय यह जटिल संभावना में बदल जाता है। आप यह समझने लगते हैं कि पृथ्वी एक विशाल प्रयोगशाला है और आप यहाँ रचनाओं में रुचि ले रहे हैं। कुछ शानदार है, कुछ भयानक है। अद्भुत प्रयोगों का परिणाम आपके सामने है। जीतें और भयानक जीतें आपकी त्रासदियों का कारण बनती है। प्रत्येक विकास कुछ ना कुछ सिखाता है और अधिक सीखने का अवसर प्रदान करता है। भौतिक रैखिक घटनाओं से परे देखें और अपनी शाश्वत अपने जीवन के सबक खोजने के लिए दिखावे की दुनिया है। अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए आत्मा के स्वरूप से देखने का प्रयास करें, जो एक अवतार से दूसरे अवतार तक यात्रा करती है। आगे आपके अहंकार के दृष्टिकोण के बजाय जो डर में फंसा है। एक बार जब आप ईश्वरीय आदेश स्वीकार कर लेते हैं, तो आपकी महान चेतना सीधा प्रकट होने लगती है। आप अपनी आत्मा की योजनाएं और इरादे भले ही आप बौद्धिक या भावनात्मक रूप से इसे प्रकट होते हुए ना समझे, जीवन समझ जाएगा। अधिक अर्थ समझना शुरू करें। आपके लिए मानसिक स्तर पर अपनी आत्मा की योजना को समझने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बुद्धि अहंकार आपके अस्थायी स्व का हिस्सा है। हालांकि जब आप अपने सहज ज्ञान पर भरोसा करेंगे, तो आप सहज रूप से अपनी आत्मा की दिशा को समझ लेंगे। आइए दोस्तों इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। सब कुछ ईश्वरीय क्रम में है। यहाँ पर बता रहे हैं तृतीय अध्याय है आत्मा पाठ और आत्मा उद्देश्य से अंश लिए गए हैं। चैनल सामग्री। कभी कभार जीवन से पीछे हटें, कभी कभी जीवन से पीछे भी हटकर हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए। भव्य दृष्टिकोण अपनाएं, बड़ा दृष्टिकोण बनाएं, उसको अपनाएं। याद रखें कि आप आत्मा है। दोस्तों हम अच्छी तरह जानते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है। इसके बारे में बता रहे हैं कि हमें याद रहना चाहिए कि हमेशा कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। चाहे अपने मानव रूप में कितना भी कष्ट सहे हैं, जितना भी हम कष्ट सहे, लेकिन हमें अपने शरीर के रूप से कष्ट महसूस होता है, लेकिन आत्मा के रूप में नहीं। इसलिए हमें अपने शरीर को नहीं आत्मा समझना चाहिए। आप एक सशक्त रचनाकार हैं, हम एक सशक्त रचनाकार हैं, जो ना तो मरता है और ना ही ये मर सकता है। आत्मा के बारे में बता रहे हैं, ना तो ये मरता है और ना ही ये मर सकता है। शरीर आता है और चला जाता है, एक जन्म लेते हैं फिर दूसरा जन्म हमारा हो जाता है, और भावनाएं उठती हैं और गिरती हैं। जैसे हम हमेशा अपने आप को अनुभव करते हैं, भावनाएं कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे गिरती है, उसके बारे में बता रहे हैं। मन नियंत्रित बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। मन को नियंत्रित बनाए रखने के लिए वो संघर्ष करता है, लेकिन ये सभी गतिविधियां आपके अस्थायी भौतिक अस्तित्व का हिस्सा है। जितना अधिक हम अपने सीमित अहंकार के साथ पहचान करेंगे, तो ईश्वरीय आदेश को स्वीकार करना उतना कठिन हो जाएगा। दोस्तों केवल जब आप इसे याद करते हैं, तो आप एक अनित्य शरीर में रहने वाले एक अमर आध्यात्मिक प्राणी हैं, इस चीज को हम महसूस करते हैं। और आप यहाँ इस ग्रह पर जिम्मेदारी से प्रयोग करने के लिए और निर्माण करने के लिए आए हैं, तब जाके हमें कुछ समझ में आता है। दोस्तों इन चीजों को हमें समझने के लिए ध्यान नियमित रूप से
अभ्यास प्रयास करें, स्वाध्याय करें, संजय संगति करेंगे तो हमें इन चीजों को बहुत जल्दी समझ पाएंगे। जब आप स्वीकार करते हैं कि आप अपनी आत्मा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपने अनुभवों के पाठ्यक्रम को रेखा चित्र करते हैं तो जीवन इतना कठिन और व्यवस्थित और डरावना नहीं लगता है। जब हम अपने जीवन को इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो अपनी आत्मा को विकास के आगे बढ़ने के लिए अपने अनुभव के पाठ्यक्रम को रेखा चित्र करते हैं और जीवन इतना कठिन, अव्यवस्थित और भयानक और डरावना नहीं लगता है। इसके बजाय यह जटिल संभावना में बदल जाता है। आप ये समझने लगते हैं कि पृथ्वी एक प्रयोगशाला है जहाँ अपनी रचनाओं में हम रुचि ले रहे हैं। दोस्तों, हम जब इन चीजों को अनुभव करते हैं तो हम पृथ्वी एक प्रयोगशाला के रूप में अनुभव करते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि हम यहाँ पृथ्वी पर जो अपनी रचनाओं में रुचि ले रहे हैं, कुछ शानदार हैं, कुछ भयानक हैं। जो भी हम अनुभव लेते हैं उसमें कुछ शानदार होता है, कुछ भयानक होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। अद्भुत प्रयोगों का परिणाम आपके सामने है। हमारे सामने अद्भुत प्रयोगों का परिणाम हमारे सामने रहता है। जीते और भयानक जीते आपकी त्रासदियों का कारण बनती है। प्रत्येक विकास कुछ ना कुछ सिखाता है। हमारे जो भी अनुभव के अंदर विकास होता है हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। ये अच्छी तरह हम अनुभव करते हैं। अधिक सीखने का भी अवसर प्रदान करता है। भौतिक रैखिक घटनाओं से परे देखें और अपनी शाश्वत अपने जीवन के सबक खोजने के दिखावे की दुनिया है। अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए आत्मा के स्वरूप से देखने का प्रयास करें। माने हमें अपने स्वयं को देखना चाहिए, अपनी आत्मा के स्वरूप से देखना चाहिए, जो एक अवतार से दूसरे अवतार तक यात्रा करती है, एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर तक जो यात्रा करती है उसके बारे में बता रहे हैं। आपके अहंकार के दुश्मन के बजाय जो डर में फंसा है, एक बार जब आप ईश्वरीय आदेश को स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी महान चेतना सीधा प्रकट होने लगती है। आप अपनी आत्मा की योजनाएं और इरादे भले ही आप बौद्धिक या भावनात्मक रूप से इसे प्रकट होते ना समझे, लेकिन ये जीवन समझ जाएगा। इसके बारे में बता रहे हैं। आपके लिए मानसिक स्तर पर अपनी आत्मा की योजना को समझने के लिए कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बुद्धि अहंकार आपके अस्थायी स्व का हिस्सा है। हालांकि जब आप अपने सहज ज्ञान पर भरोसा करेंगे तो आप सहज रूप से अपनी आत्मा की दिशा को समझ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो बता रहे हैं कि सहज रहना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए, और ध्यान जब हम करें तभी हम सहज रह पाएंगे और इसका अनुभव करेंगे। स्वाध्याय करें, संजय संगति करें। दोस्तों, इन चीजों को समझने के लिए हमें पत्री सर के बताए हुए ध्यान, आनापानसति ध्यान, श्वासों के साथ ध्यान नियमित रूप से करें तो हम अपने आपको अच्छी तरह से अनुभव कर पाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और इन चीजों को हम अच्छी तरह तभी जीवन के अंदर आनंद उठा सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों रिश्तेदार जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।